अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सफदर खैसर। आज फारुका बॉयज हाई स्कूल में यादगार दिन रहा। यहाँ पर मुजाहिदीन आज़ादी के खिराज अकीदत पेश किया गया। न सिर्फ मुजाहिदीन आज़ादी के कुर्बानियों को पेश किया गया, बल्कि यहाँ पर साइंस के मुजद्दिद इस्लाफ को भी पेश किया गया। इस मौके पर यहाँ के मोहतमद एजाजी जनाब ताज मोहम्मद खान साहब तशरीफ लाए। उन्होंने रिबन कट की और तमाम तुलबा से बातचीत की और उनसे इंटरेक्शन भी किया और अपने कमेंट्स भी यहाँ पर दिए हैं। तो यहाँ के जो हेडमास्टर साहब है और यहाँ के जो मुंजमला असातिज़ा कराम है, और हाफिज तुफैल साहब हो या हिदायत हो या मुजीब साहब हो या जितने भी यहाँ के जिम्मेदारान हैं, उन तमाम की तफसीलात आपके रूबरू पेश की जाएगी। जो कौम अपने माजी को भुला देती है, उसका मुस्तकबिल कैसे रोशन हो सकता है। तो इसी बात के मद्देनजर इन बच्चों के जहनों में तारीख को जगाने के सिलसिले में एक इकदाम किया है। ये इकदाम ये था कि यहाँ पर मुजाहिदे आज़ादी के तमाम इस्लाफ को, इसी तरह साइंस और दीगर शोबों में अपनी तारीख हैसियत रखने वाले तमाम लोगों को यहाँ पे पेश किया गया और बहुत से मॉडल्स को पेश करते हुए इन तुलबा को एक तरह से एक ज़हीन साजी दी है कि वो माजी को जाने। जब इन बच्चों को माजी का पता ही नहीं चलेगा तो मुस्तकबिल में कैसे चमकते सितारे बनेंगे। इस सिलसिले में आपके क्या कमेंट्स है जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए मुझे सफदर खैसर इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। My name is Muhammad Mas from 10th year. Here I am explaining about Tipu Sultan, who was the first Muslim freedom fighter known for his bravery, famous as Tiger of Mysore or Sher Mysore. He was born on 20 November 1750 at Devanahalli near Bengaluru, Karnataka. His parents were Hyder Ali and Fatima Fakrunnisa. He was a strong opponent of British East India Company, who fought for Anglo-Mysore War against British. He introduced rockets in warfare. He implemented administrative, military and economic reforms. He promoted trade industry and agriculture. Known for his famous saying, "It is far better to live like a lion for a day than to live like a jackal for 100 years. He was martyred while defending in Srirangapatna against the British in Fourth Anglo-Mysore War in 1799. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Syed Nasir. I am from 10th standard. Here I am presenting the life and achievement of great Nawab Sirajuddaulah, who was last independent Nawab of Bengal. He was born on 1733 in Murshidabad. His parents were Amina Begum and Zainuddin Khan. My name is Zaid Beg and I am going to explain about Shaukat Ali, who was the great freedom fighter of India. Shaukat Ali was born on 1873 in Rampur State. He was educated at the Aligarh Muslim University. Shaukat Ali helped his younger brother Muhammad Ali Johar, who published the English weekly Comrade. In 1915, he published an article which said Turks were right to fight to the British. He attended the first and second round table conference in London in 1930-31. He travelled all over the East building support Indian Muslims for the struggle from British rule in India. He was died on 26 November 1938 in London. Thank you. Syed Hussain. I am studying in 8th standard. I am explaining about Dr. Zakir Hussain. Dr. Zakir Hussain was born on 8th February 1897 in Hyderabad. He was an Indian independence movement. He was awarded by Bharat Ratna Award in 1963. He was died on 6 November 1967. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Muhammad Rahil Alam. I am explaining about Dr. Saifuddin Kachori. He was the Indian
independent freedom fighter, political, national Muslim leader. He was born in Kashmir 15 January 1888. He was participated in freedom struggle movement. He was the Indian participated. He was struggle very much. He was founder of Naujawan Bharat Sabha. He was awarded by Peace Prize in 1952. Thank you. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Aliyam. I am explaining about Bacha Khan Abdul Ghaffar Khan. Abdul Ghaffar Khan born on 6 February 1890. His nickname Fakhre Afghan led poet to Rustan Bacha Khan or Bacha Khan King of Sea was the Pakistan independence activist who worked to end the rule of the British Raj in India. He was a political and spiritual rule of the British Raj in India. He was a devout Muslim close friend Mohandas Gandhi. Bacha Khan was nicknamed the Frontrunner Gandhi. British ordered to troops to fire with guns. They killed 200 to 250 people. ये अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने मुझे ऐसी अजीम शख्सियत से थ्रू हमारे मरहूम अजीज सेठ साहब के जरिए से गवर्नमेंट हाउस में मुलाकात हुई। जब मैं इनसे मिला तो देखा एक अजीम टॉल शख्सियत थी और इतने सादे थे मैं कुछ बयान नहीं कर सकता। वो पठानी ड्रेस, फिर हाथ में लाठी, एक पोटली में 2-4 और कपड़े इनके। अच्छा, बस सादगी। अच्छा, बिठाया, बात की, दुआ किया और उन्होंने खास कर मुस्लिम कौम के लिए दुआ की और उन्होंने अपनी आजादी की दौरान अंग्रेजों से किस तरह लड़ाई की, किस तरह से मुसलमानों को साथ लिया और आजादी हासिल करने की कोशिश की। अक्सर इनको बादशाह खान कहा जाता है, फ्रंटियर गांधी। बिल्कुल गांधी इसलिए कहा जाता था कि इनकी सादगी थी, बिल्कुल सादगी, और नमाज के पाबंद थे। ये अल्लाह का करम है कि मुझ जैसे इंसान को इनसे मुलाकात हुई। बहुत बड़ा शर्फ मिला सर आपको। और हमारे इदारे में ये तमाम तस्वीर जो है हमारे अख्तर सुहेल साहब ने बनवाई, जो हमारे हेडमास्टर थे, इसलिए बनवाई। और ये मेरी ख्वाहिश थी कि यंग जनरेशन को हमारी तारीख और उस तारीख में कौन कौन क्या किस्म का रोल अदा किया था वो मालूम कराना। आजकल बच्चों को पूछो खान अब्दुल गफ्फार खान कौन, नहीं मालूम। हकीम अजमल खान पूछो, नहीं मालूम। अलबत्ता मौलाना आजाद को जानते हैं, इसलिए कि कांग्रेस में उनकी तस्वीर वगैरह आती है। लेकिन यही वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी अंग्रेजों से लड़कर हिंदुस्तान को आजाद करने की कोशिश की और मुसलमानों को एक जमा करने की कोशिश की। Baghat Khan was born in 1977 in Bijnor. He known for Indian freedom fighter. Baghat Khan was commander-in-chief of rebel force in Indian rebel of 1857 against the East India Company. Indian rebel of 1857 started against the production of rifle cannon flag with a big fact. We support the Muslim soldiers. They are not about to eat the big meal in Islam. We support this as well as we support Hindu soldiers. Baghat Khan faced many problems in his life and he needed immediate attention. The first and foremost problem was financial to solve. He opted the imperial authority to collect taxes. मैं 9वीं जमात की तालिब इल्म हूँ। आज मैं आपको मौलाना हसरत मोआनी के बारे में बताऊंगी। ये मौलाना हसरत मोआनी है। मौलाना हसरत मोआनी अजीम शायर, मुजाहिद आज़ादी और बेबाक सहाफ़ी थे। इन्होंने सबसे पहले इनकलाब जिंदाबाद का नारा बुलंद किया और अंग्रेज़ों के खिलाफ जदोजहद की। अदब में वो क्लासिकी गज़ल के मुमताज़ शायर थे, जिनकी शायरी में इश्क और हुर्रियत दोनों की झलक मिलती है। दीन के मामले में वो पक्के मुसलमान, सादा मिजाज, सूफी फिक्र के हामिल हैं। मशहूर तसानिफ कुलियात हसरत मोआनी, शहर कलाम गालिब, निकात सखन और इनकी मशहूर गज़ल चुपके चुपके रात दिन है। शुक्रिया। रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम तरन्नुम है, 10वीं जमात की तालिब इल्म हूँ। मैं आज मग़फ़ूर अहमद इजाज़ी के बारे में बात करने वाली हूँ। मग़फ़ूर अहमद इजाज़ी मुजाहिद आज़ादी थे।
गफ्फार अहमद हिजाजी बड़े सगीर के मारूफ मुजाहिद आज़ादी, इस्लामी आलिम और सियासी रहनुमा थे। वो तहरीक खिलाफत और तहरीक आज़ादी हिंद में सरगर्म रहे। उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अवाम को बेदार करने में अहम किरदार अदा किया। वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के मजबूत हामी थे। उन्होंने सादा जिंदगी गुजारी और कौम की खिदमत को अपना मकसद बनाया। टेबल कॉन्फ्रेंस को लेकर गए कहते हैं 5 स्टार होटल के रूम दिए। He never slept on the पलंग, नीचे हासिर बिछाकर सोया करते हैं। क्या क्या वो सादगी पसंद है? सादगी नहीं, अंग्रेजों से उतनी नफरत। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम उम्मे सलमा है और मैं 10वीं जमात की तालीम आलिम हूँ। आप जो तस्वीर देख रहे हैं उनका नाम मौलाना लखत अली खान मौजिद आज़ादी है। मौलाना लखत अली खान बड़े जिक्र के एक अहम मौजिद आज़ादी और अजीम रहनुमा थे। वो तहरीक आज़ादी हिंद और क़याम पाकिस्तान में नुमाया किरदार अदा करने वालों में शामिल थे। वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के एक अहम लीडर थे और वो क़ायद अज़ीम मोहम्मद अली जिन्ना के करीबी साथी माने जाते थे। मौलाना लखत अली खान ने मुसलमानों के हुकूक के लिए सियासी जद्दोजहद की और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आज़ादी की तहरीक में हिस्सा लिया। इन्होंने 1947 में पाकिस्तान के क़याम के बाद पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म बने और इन्होंने मुल्क को मजबूत बनाया और आइन और जमहूरियत की फराख के लिए काम किया। शुक्रिया। मैं 8वीं जमात का तालिब इल्म हूँ। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये उबैदुल्लाह सिंधी की है। आज मैं उबैदुल्लाह सिंधी के बारे में बताऊंगा। उबैदुल्लाह सिंधी मुजाहिद आज़ादी। उबैदुल्लाह सिंधी बरसगीर के मशहूर इस्लामी आलिम मुफक्किर मुजाहिद आज़ादी थे और वो दारुल उलूम देवबंद से वाबस्ता रहे। इन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आज़ादी की तहरीक में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पहले जंग अज़ीम के दौरान वो बैरूनी मुल्क गए और रेशमी रुमाल तहरीक में अहम किरदार अदा किया। वो एक बड़े आलिम, मुसन्निफ और सियासी मुफक्किर थे। इन्हें एक सच्चे बेखौफ उसूल पसंद मुजाहिद आज़ादी के तौर पर याद किया जाता था। वेरी गुड। My name is Muhammad Ali. I am studying 10th standard. Here I am explaining about Ashrafullah Khan. Ashrafullah Khan was a believer, Indian revolutionary and freedom fighter who separated his life for the country. He was born on 22 October 1900 Shahjahanpur, Uttar Pradesh. He was a firm believer in Hindu-Muslim unity. He was actively against British rule. He was actively revolution activity against the British rule. He participated in the Kakuri train, looting British carrot in the train. Thank you. नवासा आमिर खान। मदद के बहन का नवासा अच्छा एक्टर है ना आमिर खान जी जी। इनके बहन का नवासा। He had some differences with Pandit Nehru after independence. So he left to Calcutta. Nehru dashed to Calcutta. जाकर आजाद से मिले, बोले मौलाना क्या आप हिंदुस्तान को अनपढ़ रखना चाहते हैं? क्या बोले? क्या हिंदुस्तान को आप अनपढ़ रखना चाहते हैं? मौलाना मान गए और आकर वजीर तालीम बने। ये तमाम ये IT, UGC वगैरह वगैरह सब जो है इन्हीं का किरदार है। कई बार जेल को गए और इनकी बीवी इनके साथ रहा करती थी हमेशा। को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया था शौकत अली। उन्होंने वापसी में वहां से निकलते वक्त कहा कि या अल्लाह मुझे गुलाम हिंदुस्तान में मत ले जा। रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज हमें बेहद खुशी है कि हमारी फारूकिया बॉयज हाई स्कूल में एक ऐसी एग्जीबिशन मुनक़द की गई है जो इस तरह की एग्जीबिशन कहीं और दूसरे स्कूल्स में नजर नहीं आती। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ एक गैलरी लगी हुई है साइंटिस्ट की, जो फेमस मुस्लिम साइंटिस्ट हैं जिसे कोई नहीं जानता आज के दौर में, लेकिन इनका जो बड़कपन था ये गोल्डन एज में ये सब रह चुके हैं और बहुत सारे इन्वेंशंस कर चुके हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम मुसलमान होने के बावजूद इनके बारे में कुछ नहीं जानते। तो इसी सिलसिले में हम हमारे मुसलमानों को वाकिफ कराना चाहते हैं कि हमारे मुस्लिम साइंसदान ने असल में क्या क्या अचीवमेंट्स हासिल किए हैं, उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या हैं। तो ये दिखाने के लिए हम आज ये
एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज कर को ही, तो मैं हर एक से गुजारिश करती हूँ कि वो आकर इसका फायदा उठाएं। तो सबसे पहले हमारे साथ हमारे हेडमास्टर नसीरुल्लाह खान साहब भी हैं और हमारे ऑफिस सुपरिटेंडेंट फैरोज अहमद सर भी हमारे साथ हैं। तो बेहद खुशी है, इन सब लोगों की मेहनत का नतीजा है और हमारे स्टूडेंट्स की मेहनत का नतीजा है। हमारे सबसे पहले सबसे बढ़कर हमारे सेक्रेटरी साहब का इसमें बहुत बड़ा हाथ है, उन्हीं की वजह से ये आज हो पाया है। तो हमारे एएस सर जो रिटायर्ड हो चुके हैं, हमारे उर्दू टीचर, साबिक हेडमास्टर, तो ये सब फोटो गैलरीज की का जो आज आप देख रहे हैं वो उन्हीं की मेहनत और कोशिश का नतीजा है। उन्होंने इस सारे फोटोग्राफ्स को इकट्ठा किया है, इंफॉर्मेशन दिया है। रहमतुल्लाहि बरकातहू। फारुखिया बॉयज हाई स्कूल में मुस्लिम साइंसदानों और मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी के बारे में एक फोटो एग्जीबिशन का इनेकाद आज किया जा रहा है। इसके लिए हमारे सेक्रेटरी अलहाज ताज मोहम्मद खान साहब के ईमा पर ये एग्जीबिशन मुनक़द की जा रही है, ताकि हमारी नौजवान नस्ल जो है इन आदमियों के बारे में जिनका बहुत बड़ा एहसान है। एक जमाना यूरोप के यूनिवर्सिटियों में इन्हीं के असबाक पढ़ाए जाते थे, जैसे कि जाबिर बिन हयान, इब्ने हतीम और अबू नसर, इन तमाम के जो किताबें थे यूरोप के यूनिवर्सिटियों में पढ़ाए जाते रहे हैं। और बहुत से मुरखिन का कहना है कि जदीद साइंस की बुनियाद इन्हीं मुस्लिम साइंसदानों का कोशिशों का नतीजा है। तो आज साइंस एग्जीबिशन में आप सबका खैर मुकद्दम है। Rahmatullahi wa barakatuh. My name is Bibi Amina. I am from 10th standard. Today I am going to introduce about famous Muslim scientist Jabir ibn Hayyan. Jabir ibn Hayyan, he was born on 721 AD, Taus, Iran. Jabir ibn Hayyan, often called the father of chemistry and pioneering contributions to alchemy and early chemistry through experimental methods. His work laid foundational principles for modern chemical process. His key innovations are: Jabir introduced systematic experimentation, including process like calcination, distillation, sublimation, and evaporation. He synthesized key acids such as nitric acid, tartaric acid, acetic acid, and hydrochloric acid, and aqua regia for dissolving gold. Thank you. ये तमाम साइंटिस्ट जो हैं, they were all हाफिज कुरान and they recited Quran at the age of 5-6. तो एक मिसाल है हमारे लिए कि क्या करना है। ये तारीख हमारे बच्चों को हमने ये एग्जीबिशन मुनक़द करने का मेन मनसब यही है कि हमारे बच्चों को हमारे आबा व अजदाद, हमारी तारीख क्या है मालूम कराना। जैसा कि मैंने वहाँ पूछा, ये फोटो देखकर एग्जीबिशन से पहले क्या आप लोग बच्चों को ये नाम याद थे? नहीं। हमारा मकसद ही यही है कि बच्चों को हमारी तारीख से मालूमात फराहम करें, उसमें वलवला पैदा होता है। एक बार साइंस एग्जीबिशन करे थे नहीं, 93 में करे थे। एक बच्चा मॉडल बनाया था अलार्म क्या की, वो दैट वाज कॉपीड बाय समबॉडी इन बैंगलोर। such a exhibition was conducted in some institution. One boy converted his Lambretta scooter into a helicopter. Sufia, I am studying in 10th standard. Now I am going to introduce about the famous Muslim scientist Ibn al-Haytham. Ibn al-Haytham was a great polymath and astronomer of a Muslim scientist. He was born in 965 century at Basra of Iraq from a middle class family, and later he moved on to Cairo, Egypt. Achievements of Ibn al-Haytham. Ibn al-Haytham's biggest contribution was Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Nurul Huda. I am studying in 10th standard. I am going to introduce about Abu Nasr Mansur. Abu Nasr Mansur was born on 960 AD in Iraq. He was a Persian Muslim. He was a Persian Muslim. He was a Persian Muslim.
Prince, mathematician and astronomer. His key contributions are trigonometry and geometry. Sin square theta plus cos square theta is equals to 1. Thank you. Very good. Myself, Ronak Khanna, and I am from Tanzania. Today I am going to introduce about the famous Muslim scientist of Ibn Sina. Ibn Sina was born on 22 August 988 AD in Uzbekistan. Ibn Sina was also known as the Avicenna, was Persian polymath whose work profoundly shaped as science, philosophy, and medicine. He is called father of medicine. His contributions influenced the both Islamic and European thought for centuries. Avicenna's Canon of Medicine was served as the standard medical textbook in universities worldwide for over 7 centuries. He began integrating Greek, Persian, Indian, and Islamic knowledge with his clinical experience. Abu Ali Sena. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Umesh Shifa. I am studying 10th standard. I am going to introduce a famous Muslim scientist about Ibn al-Nafiz. Ibn al-Nafiz was born in 1213 in Damascus, was and mostly famous to describe as the pulmonary circulation of the blood. The work of Ibn al-Nafiz regarding the right-sided pulmonary circulation predates the later work of Ibn al-Nafiz. Rahmatullahi wa barakatuh. My name is Farha Banu. I am studying in 10th standard. Today I am going to introduce about one of our famous scientists, Musa al-Khawarizm. Musa al-Khawarizm is known as the father of algebra. He was a great Muslim mathematician and scholar. He wrote an important book on mathematics and numbers. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Umesh Shifa. I am studying 10th standard. I am going to introduce Muslim scientist about Ibn al-Nafiz. Ibn al-Nafiz was born on 1213 in Damascus, Syria. Was an Arab physician from Damascus, mostly famous to begin the first to describe as the pulmonary circulation of the blood. The work of Ibn al-Nafiz regarding the right-sided pulmonary circulation. The later work in 1628 of William Harvey's De Motu Cordis. Both theories attempt to explain coordination. Thank you. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Myself Gaur, I am studying 10th standard. Today I am going to introduce famous Muslim scientist Abu Hanifa Dinawari. Abu Hanifa Dinawari was considered the founder of Arabic botany for his Kitab al-Nabat, Book of Plant, which considered the 6 volumes. Only the 3rd and 5th volume has survived. Third, the 6th volume has partly been reconstructed based on citizen from their later work. 637 plants are described from the latest phases of plants growth and the production of flower and fruit. Thank you. Assalamu alaikum. My name is Alia Fatima. I'm studying in Assalamu alaikum. My name is Alia Fatima. I'm studying in 9th standard. Today I'm going to introduce you one of the famous Muslim scientists of the golden age of Islam. His name was Abbas ibn Firnas. He was born on 810 AD in Ronda, Spain. Abu al-Qasim Abbas ibn Firnas. Abbas ibn Firnas was an Andalusian polymath, scientist, chemist, inventor and Arabic language poet, and is reputed to have attempted flight. He covered himself with feathers for the purpose. He attached a couple of wings to his body and flew a considerable distance as if he had been a bird. Abbas ibn Firnas invented the water clock named al-Makhata, and he also invented various lenses, planisphere, made corrective lenses. My name is Syed Tahir. I am studying in 10th standard. I am explaining about Constitution. Constitution is the fundamental of law of land. Constitution is the fundamental of law and land. It is written by the Dr. B.R. Ambedkar. Our Constitution is at present consists of 448 articles, 25 parts and 12 schedules. It has a preamble which is an action of our Constitution, which is an introduction of Constitution. We the people of India have been solemnly sworn to constitute India as socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, unity, of the user and the
वेरी ये वाटर वेल कर दो। ये मॉडल गुड। सर एक क्लास करते हुए निकल जाएगा। आइए अब कोई बात मत करो, बता लेते। बोल बेटा। ये ट्राई करते सर ये आपका इंडोर से टच होना नहीं, टच नहीं टच होगा तो जरा सर टच हो जाएगा पूरा, टच नहीं करना बस और टच सर ये तुम्हें टाइप्स ऑफ इरिगेशन जैसे ही कार आती है वो स्टार्ट है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। एरोप्लेन सबसे पहले कौन जी बनाए सो? राइट ब्रदर्स। इनका नाम कर लें, लेकिन बनाया सो मुसलमान। वेरी गुड and working in organic sector. वेरी गुड Working in organic sector. वेरी गुड। Advantages of banks. Individual firm company. Users of banks, safety lockers, banks, acceptance of deposit, government transaction, banks dealing What is the height of Himalaya? Mount Everest? हाँ? पहले कर्नाटका का नाम मैसूर था, मैसूर स्टेट। वाटाल नागराज करके एक कन्नड़ा चळवळी था। उन्हें क्या करता, कर्नाटका मडगी, कन्नड़ा, तमिलनाडु का नाम रख डाले, केरला मलयालम था, कर्नाटक का नाम रखो रखो करता था। देवराज अरसु से असेंबली में क्या बोले, कुत्कोल्रे आ ಹೆಸರು ಮಡಗಿರೋನು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ, ಹೋಗಿ ನೋಡಿ। टीपू सुल्तान के 35 जो दरवाजा है उसके ऊपर कर्नाटका अगर को नाम लिखो है। टीपू सुल्तान के इधर ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट करके जैसे ही लाइट फॉल होता है। अच्छा नहीं तो आप लोग आप समझ ये पूरे वेरी गुड। व्हाट इज ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस का तो क्या जी? Osmosis is a process by which Anybody know? water molecules move from its higher concentration to the lower concentration. गुड। हाँ क्या बेटा? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग कौन से वजूहात से ग्लोबल वार्मिंग? फैक्ट्रीज। वेरी गुड। My topic is forest. Home of bird, home of Speak animal. loudly, please. Speak loudly. Home of bird, home of animal, attract tourists, bring rainfall. माइग्रेशन ऑफ बर्ड सबसे पहले कौन फाइंड आउट करे सो? सलीम अली। 60 साल पहले पढ़ा था सब। वर्ल्ड के स्पेशलिस्ट। माइग्रेशन समझे? बर्ड सैंक्चुरी देखो यहाँ पटन के पास नाइजीरिया से आको रहती, अमेरिका से आको रहता बर्ड्स। वो माइग्रेशन होता है ना, उससे रिसर्च करे सो डॉक्टर सलीम अली। पढ़ाते नहीं इनको सलीम माइग्रेशन के बारे में। अब लिखती है बस।
सर, इख्तितामी तौर पर आपके क्या तसरत है सर? आपने तमाम चीजें देखी, मुजाहिद आजादी से लेकर मौरखीन से लेकर यहाँ पर मॉडल्स भी आपने देखा। सर, हर शोबे में हमारे इस्लाफ ने अपने किरदार का अंजाम दिया है, तो कंक्लूजन क्या रहेगा सर आज का? मुझे सबसे पहले इन बच्चों की मेहनत की मैं दाद देता हूँ, हमारे स्टाफ मेंबर्स की भी मैं दाद देता हूँ कि उन्होंने बच्चों को अच्छी तरबियत की है और उन्हें शौक दिलाया है कि साइंस के मॉडल्स बनाएं। हमारे साइंसदान कौन थे, मुजाहिद आज़ादी कौन थे, हमारे मुल्क को आज़ादी कब मिली, आज़ादी में कौन कौन हिस्सा ले रहे थे, ये तमाम मालूमात जो है वैसे हम पढ़ते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन शाम को बंद करके रख देते हैं। लेकिन इस तरह के एग्जीबिशन रखकर अगर उन्हें बता दिया जाता है तो उनके जहनों में बात बैठ जाती है। इल्म बगैर अमल के, इल्म बगैर अमल के, अमल बगैर नियत के बेकार। अच्छा, समझे? तो एक कड़ी है, ये कड़ी है, ये इन बच्चों को समझाना चाहिए। मैं इन बच्चों को मुबारकबाद देता हूँ, हेडमास्टर साहब को और उनके स्टाफ को मैं मुबारकबाद देता हूँ। मेरा बहुत साल से मंशा था कि इस तरह के हमारे यहाँ प्रोग्राम्स हो। मैंने हेडमास्टर साहब से गुजारिश की थी कि अतराफ और कनाफ के स्कूलों को भी बुलाकर बताया जाए कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। उनके वालिदैन को भी बुलाना चाहिए, उनके वालिदैन को भी अगर मदु करेंगे तो वालिदैन भी आकर जो है खुश हो जाएंगे। जी, ये वालिदैन है सर, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, वेरी गुड। बेटा देखो, यू शुड आल्सो अरेंज इन योर स्कूल, समझे? इंशाल्लाह तुम्हें अरेंज करो, मेहनत करो, प्रैक्टिकल करे तो क्या होता बोलो? एक शायर का, एक बड़े आदमी का कहना है, फूल तो हम घर पर भी सूंघते हैं, फूल तो हम घर पर भी सूंघते हैं, लेकिन बाग में जाकर सूंघने का मजा कुछ और है। बरकत हो। आज हम सब के लिए खुशी का, मसरत का मौका है कि आज हमारे पुरखों के अजीम विरसे की शनाख्त और उनके कारनामों का तज़किरा करने के लिए मुस्लिम साइंसदानों और हमारे मुल्क की जंगे आज़ादी के लिए अपना तन मन धन लुटाकर मर मिटने वाले असलाफ के बारे में एग्जीबिशन के लिए जमा हुए हैं। मैं इस मौके पर हमारे इदारे के सरपरस्त रिफाल मुस्लिमीन एजुकेशनल ट्रस्ट के मुतमद एजाजी अलहाज ताज मोहम्मद खान साहब का खैर मुकद्दम करता हूँ। जनाबे वाला की यह दिली ख्वाहिश रही है कि हमारे तालिब इल्म दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम से भी बहरावर हो और साथ साथ हमारे मुस्लिम साइंसदानों के बारे में जाने, और साथ ही इस मुल्क के लिए हमारे बड़ों ने जो कुर्बानियां दी हैं इसका भी इल्म रखें। इन्हीं की ईमा पर यह एग्जीबिशन मुनक़द की गई है कि एक जमाने में हमारे आबा व अजदाद की तहक़ीक़ात और उलूम यूरोप की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाते थे। अरबों ने पूरी दुनिया में तिजारत के साथ साथ इल्म को भी फैलाया था। बहुत से यूरोपीय साइंसदानों का मानना है कि मॉडर्न साइंस की बुनियाद इन्हीं मुस्लिम साइंसदानों की मेहनत पर कायम की गई है। हमारी ये छोटी सी कोशिश रही है कि इन अदवार के तारीखी कारनामों से आज की नौजवान नस्ल को रोशनास कराया जाए और साइंस में तहकीकात, जुस्तजू और तजुर्बात में दिलचस्पी पैदा करने के लिए इस एग्जीबिशन का इनाकात किया गया है। इसी तरह मैं खैर मुकद्दम करता हूँ हमारे स्कूल के साबिक हेडमास्टर और काउंसलर जनाब मोहम्मद फजलुल्लाह साहब का, और हमारे मॉरल एजुकेशन के हेड अलहाज तुफैल अहमद साहब का,
हमारे तमाम साथी अस्तिज़ा इकराम का, जिन्होंने सिर्फ 2 दिन के वक्फे में अपनी अनथक मेहनत से इस एग्जीबिशन के इनेकाद के लिए कोशिश की है। हमारे ऑफिस स्टाफ के जनाब फैरोज अहमद साहब और इनके साथियों का भी खैर मुकद्दम करता हूं, और हमारे बीच आए हुए दूसरे स्कूलों के अस्तिज़ा और हेडमास्टर्स का भी तहे दिल से खैर मुकद्दम करता हूं। खुसूसन हेडमास्टर नासिरुल्लाह खान साहब का दिल की गहराई से थैंक यू सर। डेंटल स्टाफ के जनाब मुजीब अहमद साहब और हमारे तुफैल अहमद साहब का भी मैं खैर मुकद्दम करता हूँ। हिदायत तो करना था सबसे पहले,